Hello students, welcome to my YouTube channel DEA Academy. Today we are going to discuss our kinematics part 2 which is vectors. सबसे पहले हम पढ़ेंगे vectors होते क्या हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है पार्ट 1 में कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, which has मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल इसके हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. एंड ग्राफिकली इट इज शोन बाय एरोहेड. फॉर एग्जाम्पल मेरे को कहना है ए वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, ए के ऊपर इस फॉर्म में वेक्टर डाल दूंगा जिसका ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड टेल एंड दिस एरोड पोर्शन इज कॉल्ड हेड. This is called head of the vector, tail as well as head of the vector. Now it has two types. Vector is of two types. One is polar vector. Polar vector has starting point. It has one starting point. For example, displacement. इसका कोई ना कोई एक initial point है जहां से वेक्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है. So it for example at displacement, force, etc. Then second we move on to axial vector. Axial vector are the vector which represent a rotational effect and act along axis of rotation in accordance with right hand screw rule. Right hand screw rule हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे right hand screw rule in our next chapter. So it represent rotational effect. ये क्या करता है, मेरे को rotational effect show करता है. For example, I have omega which is angular acceleration, then angular momentum, और then I have torque. ये सारे मेरे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर. जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, यूनिट मतलब 1, और से has same direction as that of the given vector. A unit vector of a vector is written as a cap. इसको हम बोलेंगे a cap. ये वाला जो निशान लगा हुआ है a के ऊपर, इसको हम बोलेंगे a cap. That is a vector a vector equal to a dot a cap. It is written in this form. Next we move on to equal vectors. Equal vectors, if they have equal magnitude and same direction, they are said to be equal vectors. Two vectors are said to be equal if they have equal magnitude and they are also in the same direction. That means if I have vector, a vector is the one vector. Next I have here b vector. Both are equal in direction and equal in magnitude. So it could be also written as a vector equal to b vector. Next we move on to our negative vector. Negative vector में क्या होगा, they have equal magnitude. यहाँ पे मेरे पास सेकेंड थर्ड हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव वेक्टर बिकॉज इट इज सिमिलर, ओनली देयर इज डिफरेंस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन. सो हियर एरो विल बी in which direction, the arrow will be in this direction and this will be minus of a vector will be equal to minus of b vector.
A vector will be equal to minus of B vector. So this will be the negative vector. So I explain once again. So this is negative vector is the vector which have equal magnitude and opposite direction, and it is shown in this way. So A vector equal to minus of B vector. Yes, our next vector is co-initial vector. जैसे कि नाम से ही मेरे को पता लग रहा है, co-initial जिनका initial point जो है सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस. सो ऐसे वेक्टर से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. सो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ. सो इस तरह के वेक्टर जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर आर दोज वेक्टर whose initial point is same. So इस तरह के जो वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर. नेक्स्ट हम चलते हैं कोलिनियर वेक्टर में. कोलिनियर वेक्टर. सो वो वेक्टर जो एक ही लाइन में है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेक्टर ए एंड वेक्टर से दिस इज वेक्टर बी. सो दिस काइंड ऑफ वेक्टर विल बी कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. आर those vectors which are lying in same line. Then we move on to coplanar vector. वो वेक्टर जो एक ही प्लेन के अंदर है. आर दोज वेक्टर्स which lie in same plane. So इस तरह के जो वेक्टर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी. सो इस तरह के जो वेक्टर कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कोप्लेनर वेक्टर्स. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लोकलाइज्ड वेक्टर. लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं? इस तरह के वेक्टर whose initial point is fixed. ऐसे वेक्टर्स को हम फिक्स्ड वेक्टर भी बोल देते हैं. सो इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड वेक्टर भी बोल देते हैं. सो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है तो दे आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर. देन वी मूव ऑन टू नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स और इनको फ्री वेक्टर्स भी बोल देते हैं. वाई? बिकॉज उनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता. Those vectors whose initial point is not fixed. So इस तरह के वेक्टर्स को हम बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पोजीशन वेक्टर and displacement vector. Position vector as well as displacement vector. Position vector में suppose मेरे पास एक this is my x axis and this is my y axis. एक वेक्टर कोई यहां से चलता है, say this is
vector, say A vector, and after time t it reaches here at position B. So this is your R and this is your say R dash. So OA is the position vector. Similarly for here OB will also be the position vector, और आफ्टर टाइम t ये वाला वेक्टर A से B पे आया है, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, विच विल बी दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो विच विल बी दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, जिसको हम PV से भी शो कर देते हैं. सो पोजीशन वेक्टर, a vector drawn from the origin to the position of a particle, this is the position of a particle at any instant is called position vector. जैसे हमने अभी पढ़ा समझा है यहाँ पे कि O से ये चल रहा है, दिस इज माई O पोजिशन, O से A तक पहुंचा, यहाँ R डिस्टेंस इसने कवर करा, सो दिस इज माई position vector. This OB is also the position vector after time t. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम लेंगे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो करते हुए ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी द टेल एंड दिस विल बी द हेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिकॉज इट इज ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. यस, सो सिमिलरली आई हैव हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. Displacement vector of a moving particle in a given time interval of time t is directed line segment. This is the line segment. Is directed line segment from the initial to final position of the particle. This is the initial position and this is the final position. This A is the initial position and B is my final position of the particle, and this is shown by this line segment. This is the line segment. So this is what? This is my displacement vector. Next we move on to our next vector, which is multiplication of vector by real number. इसमें क्या करना है, मेरे को एक वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. मान लेता हूं मेरे पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रियल नंबर से, तो दिस विल बिकम एन इंटू ए वेक्टर. दिस विल बिकम एन इंटू ए वेक्टर. और अगर मेरा एन, इफ एन इज पॉजिटिव, देन इट विल बी, दिस वेक्टर विल बिकम plus n vector, and if n is negative, then this will become negative of n vector. So this is multiplication of vector by a real number. Similarly, we move on to multiplication of a vector by a scalar. Next heading, बाय अ स्केलर. अगर एक वेक्टर को मैं क्या करता हूं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो दिस विल बिकम s इंटू ए. सो वेयर मैग्नीट्यूड, its magnitude will be, its magnitude is s times as magnitude of A vector and acts along direction of A vector. So this is my multiplication of vector by a scalar. Next we move on to vector. If two or more vectors is defined as that single vector
which produces the same effect as it produced by individual vector, as is produced by individual vector। इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं एडिशन वेक्टर में। ये मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिसको मैं ओ ए से डिनोट कर रहा हूँ ए वेक्टर को, और बी वेक्टर को डिनोट कर रहा हूँ ए बी वेक्टर से। सो जो रिजल्टेंट होगा, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, which will come out to be OB vector, and this vector also can be represented as A vector plus B vector. In this way we have done resultant vector, addition vector and many other vectors. तो आज के लिए इतना ही, बाकी वेक्टर्स हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं लिंक भेज रहा हूँ, सो दैट वो इससे पहले वाला लेक्चर भी आसानी से देख सकें। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपके पास होगा, आप उसको पहले वाले लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।